बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर जो है चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर सेकंड हाफ पे होगा। स्पेक्ट्रम अप टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेक्ट्रम क्या है? द स्पेक्ट्रम इन विच डिफरेंट कलर्स आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डार्क स्पेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्पेक्ट्रम? The dispersion of the component of white light when it passes through a prism is called spectrum. White light जब किसी प्रिज्म से पास करती है तो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, 7 कलर्स में, जिससे वो विबग्योर बनता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड। और इनकी जो वेवलेंथ है तमाम कलर्स की, वो 400 से लेकर 750 नैनोमीटर के दरमियान होती है। स्पेक्ट्रम टू टाइप का जनरली अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रम हमारे पास एक है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक हमारे पास है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है? द स्पेक्ट्रम इन विच कलर्स आर मर्ज इनटू ईच अदर एंड बाउंड्री लाइन कैन नॉट बी मार्क, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। एग्जांपल इसकी है रेनबो। जबकि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, इट इज फॉर्म ड्यू टू एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं जी यहाँ पे एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम देखें, इट इज फॉर्म व्हेन द सब्सटेंस इज इन एक्साइटेड स्टेट, और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन इट इज फॉर्म व्हेन द सब्सटेंस इज इन अनएक्साइटेड स्टेट। Atomic emission spectrum is produced when the substance reach the gaseous or vapor state after absorbing energy. जबकि atomic absorption spectrum it is produced by gas and transparent liquid and solids. Atomic emission spectrum it consists of colored line present in a black background, while in atomic absorption spectrum it consists of black lines present in white background. Atomic emission spectrum की बात करें, every element has a characteristic pattern of color lines of specific wavelength. जबकि atomic absorption में in it dark lines replace color lines of specific wavelength of emission spectrum. Origin: when an excited electron jump from high energy to low energy or level, it emit energy that form colored lines in emission spectra. जबकि हम absorption spectrum की बात करें, when an electron absorb energy and move to high energy level, dark line in absorption spectrum indicate the absorption radiations. तो ये वो हमारे पास difference है atomic emission और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो आपके सामने है। सोमरफील्ड मॉडिफिकेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल की बात करें, 1915 में सोमरफील्ड स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस माइट बी एलिप्टिकल। एक्सरे एंड एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद हैवी मेटल्स प्रोड्यूस एक्सरेज इन द गैस जार ट्यूब। वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। हैवी एटॉमिक नंबर produce shorter wavelength of X-rays, while low atomic number metals produce high wavelength of X-rays, large wavelength of X-rays. Mosley research work cover the range of wavelength 0.04 to 8 angstrom. Spectral lines of shorter wavelength lies in K series, while the spectral lines of longer wavelength lies in L and M series. X-rays become very short wavelength in case of heavy metals. Mosley give equation under root V is equal to A into Z minus B, while A is Mosley constant and B is screening constant. Dual nature of electron. De Broglie studied the wave nature and particles nature of electron. Wavelength is inversely proportional to frequency, while we already discussed the Planck's equation. E is equal to hc into wave number. ये हमारे पास होगा Planck's equation. E is equal to hc into wave number. That is the Planck's equation. Wavelength of proton will be 1836 times smaller than that of electron. Alpha particle has wavelength 7344 times smaller than electrons. That is the striking information. Quantum number. It is a set of numerical value which give acceptable solution to Schrodinger wave equation. There are four set of quantum number which completely describe the position of electron, orientation of electron, and also tell us about the shape of subshell and the spinning of electron. Principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. First three quantum number are derived from Schrodinger wave equation. Principal quantum number which represent energy level in which electron revolves around nucleus. It is represented by n. Mathematical value n is equal to n can never be 0. It will be 1, 2, 3, 4, 5 and so on. If n is equal to 1, it means that is a K shell, 2 L shell, 3 M shell, 4 represent N shell. Similarly, azimuthal quantum number represent the shape of orbitals of electron. Magnetic quantum number which represent the orientation of orbital in the magnetic field. Spin quantum number represent the spin of electron around its own axis. It may be clockwise and anti-clockwise. Principal quantum number represented by n. Azimuthal quantum number represented by small l. Magnetic quantum number represented by small m. While spin quantum number represented by small s. Principal quantum number value started from 1, 2, 3. It can never be 0 or negative value. Azimuthal quantum number value is always less than 1 digit less than principal quantum number. It may be 0, 1, 2, 3.
The value of magnetic quantum number is same as that of azimuthal quantum number, while spin quantum number has value plus half and minus half, which show the clockwise spin and anti-clockwise spin. Number of shells. If n is equal to 1, that is k shell. N is equal to 2, it means that is L shell. N is equal to 3, it means that M shell. N is equal to 4 and N shell and so on. इस तरह एजीमोथल की अगर हम बात करते हैं, एजीमोथल की वैल्यू अगर 0 है तो इट मीन दैट इज एस सब शेल. इफ एजीमोथल वैल्यू इज इक्वल टू 1, it means that is P subshell. If azimuthal value is equal to 2, that is P subshell, and if azimuthal value is equal to 3, it means that is F subshell. तो यहाँ पे एजीमोथल की जो वैल्यू है वो हमेशा प्रिंसिपल से 1 डिजिट लेस होती है, 0 1 2 3. तो एजीमोथल की वैल्यू 0 हो तो S, 1 हो तो P, 2 हो तो ये हमारे पास D होगा, D सबशेल. इट विल बी अ D सबशेल, नॉट P. तो 0 S, 1 हो तो P, 2 हो तो D, 3 हो तो ये हमारे पास F सबशेल को रिप्रेजेंट करेगा. अगर हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की, एजीमोथल की वैल्यू 0 हो तो M भी 0, दैट इज S, और S के एक ही ऑर्बिटल होती है. एजीमोथल की वैल्यू 1 हो तो M की 0 प्लस माइनस 1, ये 3 वैल्यूज बनती हैं, और P की 3 सबशेल होती हैं, PX PY 3 ऑर्बिटल होती हैं, PX PY और PZ. अगर एजीमोथल की वैल्यू 2 है तो मैग्नेटिक की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये टोटल हमारे पास 5 वैल्यूज बनती हैं, और D की 5 ही ऑर्बिटल होती हैं, DXY DYZ DZX DX स्क्वायर Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर बाई शेप्ड बाई लोब यूनिकॉलर. एजीमोथ की वैल्यू 3 हो तो मैग्नेटिक की वैल्यू ये 7 बनती है, और बात बिल्कुल अंडरस्टूड है कि जो F है सबशेल उसकी 7 डीजेनेट ऑर्बिटल्स होती हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल कैन बी फाइंड आउट फार्मूला 2n स्क्वायर, and if you want to find out the number of electron in subshell, then the formula is 2 into 2l plus 1. Principal quantum number tells us about the distance of electron from the nucleus, size of shell, energy of electron, while azimuthal quantum number tells us about the shape of subshell, S spherical, P dumbbell, D double dumbbell and F complicated. जबकि magnetic quantum number tells us about the orientation of orbitals, जैसा कि S की एक ही ऑर्बिटल है, spherical है, P की 3 ऑर्बिटल है, PX PY PZ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस पे, और ये बाइलोब्ड होती हैं, डम्बल होती हैं. और जो हमारे पास लास्ट पे स्पिन क्वांटम नंबर है, इट टेल्स अस अबाउट द डबल लाइन स्ट्रक्चर इन स्पेक्ट्रम. इट मे बी अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. अब हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कुछ रूल्स हैं, जैसा कि अफबाउ प्रिंसिपल है. इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल. स्मॉलर द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल अर्लियर इट विल बी फिल्ड. फार्मूला हम पढ़ते हैं, ठीक है जी. इलेक्ट्रॉन के फिलिंग के लिए सबसे पहले लो एनर्जी लेवल को फिल करना है, और उसके बाद हाई एनर्जी लेवल पे जाना होगा. जैसा कि फार्मूला आपके पास था, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल. तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने 1s ऑर्बिटल को फिल करना है. इसके बाद हमने नेक्स्ट हाई एनर्जी ऑर्बिटल पे जाना है 2s पे, एंड देन इस तरह सो ऑन. सबसे पहले आपने लो एनर्जी लेवल को फिल करना है ऑर्बिटल को, देन हाई एनर्जी ऑर्बिटल पे जाना है. दैट इज अफबाउ प्रिंसिपल. इसके बाद n प्लस रूल क्या है, ठीक है जी, हम इसकी बात करते हैं. n प्लस रूल. n प्लस रूल की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल. ऑर्बिटल्स अरेंज होती हैं. द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज एस्टिमेटेड बाय n प्लस l वैल्यू ऑफ द ऑर्बिटल. If n plus l value is smaller, then the energy will also be smaller and vice versa. Pauli Student principle. No two electron in an atom can have the same set of 4 quantum number. It means that जो हमारे पास Pauli Student principle है, इलेक्ट्रॉन जो किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और एक मूव करेगा क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज. If there is a pair of electron present in an orbital, they should have opposite spin. One is clockwise and other one is anti-clockwise. Hund's rule. If degenerate orbitals are available and more than one electron have to be placed, then electron will prefer to remain unpaired than to go in different orbital. जैसा कि हम बात करते हैं जो P है, फॉर एग्जांपल P में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो P की डिजेनरेट ऑर्बिटल कितनी है, 3, 2px 2py एंड 2pz. तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है इनको पहले आप सेम स्पिन के साथ फिल करेंगे, 1 2 3. अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएगा. तो जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं सबशेल से डीजेनरेट ऑर्बिटल में, तो उनको सेम स्पिन के साथ फिल करना है. दैट इज द हुंड्स रूल. शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हम बात कर चुके हैं. एस जो है, ये एस जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. पी में टोटल 6 आते हैं. डी जो है इस सब शेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं. जबकि एफ जो है इसकी 7 ऑर्बिटल है, और हर एक 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करे तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं. MCQs. The electron should be filled in energy subshell in order of increasing energy level. This is in accordance to Aufbau principle. ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि सबसे पहले आपने लो एनर्जी सबशेल को फिल करना है, और देन उसके बाद हाई एनर्जी सबशेल में जाना है, और ये अफबाउ प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है.
Which of the following formula of quantum number help us to determine the number of orbitals in a shell? Number of orbitals की बात करिए, number of electrons की बात नहीं हो रही. Number of orbitals in a shell, that the formula is n square. For example, n is equal to 1, that is k, और k में एक ही ऑर्बिटल होता है, वो s है. अगर हम n की बात करें 2, that is l shell, तो इसमें 2 का स्केयर 4 है, तो इसमें हमारे पास टोटल s और p दो सब शेल है, s की एक ऑर्बिटल है, p की 3, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा. तो n स्केयर फार्मूला होगा ऑर्बिटल्स की तादाद मालूम करने के लिए, और अगर इलेक्ट्रॉन कहता तो फिर 2n स्केयर होता. When 6d orbital is completed, the entering electron goes into the right answer is 7p, and this is accordance to n plus l rule. फार्मूला आपको आना चाहिए इसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए. शॉर्टकट है जो निमोनिक्स है वो याद करें आप. स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल. तो उसके अकॉर्डिंग भी देख लें, या इनकी आप n प्लस एल वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो सबसे ज़्यादा सम 6d के बाद हमारे पास राइट आंसर 7p ही बनेगा. द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3. व्हाट आर द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एजीमुथल? मैंने पहले ही कहा था एजीमुथल की वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल से 1 डिजिट क्या होता है, लेस. तो इसके लिए जो राइट आंसर हमारे पास आएगा वो आपके पास है बीटा 012. इफ मेटल ऑफ हाई एटॉमिक नंबर इज यूज एज अ टारगेट, द एक्स रेज प्रोड्यूस हैव शॉर्टर वेवलेंथ. हाई एटॉमिक नंबर मेटल यूज करेंगे तो शॉर्टर वेवलेंथ वाली एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी, और अगर आप लो एटॉमिक नंबर में मेटल यूज करेंगे तो फिर लॉन्गर वेवलेंथ वाली यूज होंगी, प्रोड्यूस होंगी उसमें. व्हेन एक्साइटेड आइटम ऑफ हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, which effect is observed is, that is Stark effect. The spectrum which is formed in electric field when hydrogen is placed is called Stark effect. If hydrogen is placed in a magnetic field, that will be the answer Zeeman effect. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो राइट आंसर आपके पास होगा यहाँ पे Stark effect. For further MCQs, see practice book with detailed explanation. Thank you.